Okay, good morning, student. Shubham, I think. Shubham, you have joined the class. Uh, can you inform your classmates that class is going on and they must join the classes? Kindly inform that. Good morning, Shubham. Okay, so till now, four of you have joined. We will wait another 2 minutes so that others can join. And as I informed you by the Google Classroom too in the morning session that today we will also try to solve some of the more questions from GATE, which is asked in previous year examination, so that when you will attend this examination, then you will does not face any kind of anxiety to solve any problem related with operating system. Okay, so in the meantime, if you have any kind of question related with the previous classes or any kind of doubt, then you can ask me. Okay, till now, 8 of you have joined. As you can see okay, first of all, let's check the audio. Am I audible to all of you? Kindly respond. You can Yes, respond sir. by okay. Okay, Nikhil, very good. Others, kindly respond. Am I audible to you? Okay, Shubham has responded. And till now, 9 of you have joined. Okay. What about others? Why others are not responding? मतलब क्लास ज्वाइन करते हैं सो जाते हैं क्या? Okay, so 11 of you have joined. Let's start today's session. And First of all, we will pick one of the question which is a little bit typical to understand. Let's see how many of you can understand this problem and solve this problem in the given time. So for today's first question, it is 1.55 and it is asked in GATE uh,
2015, and it is of 2 marks, and I am giving you a time of 5 minutes to solve this question. Let's see how many of you can able to solve this question in the given time. I have allotted you 5 minutes to solve this problem. Question number is 1.55. It is asked in GATE 2015 of 2 marks. It is a theoretical, a little bit theoretical question. You have to get the data from this question by reading this question and understanding the useful datas. Okay, I got some response. 5 millisecond. Okay, Ashish Kumar has responded 5 millisecond. Okay, let's see. So I'm stopping the timer here. In 3 minutes, you have responded. Let's see, and your response is 5 millisecond. Okay, Ashish. Let's see others in how much time they can give the answer. Right now, 11 of you are in the classes, and kindly, all of you kindly respond to this problem. This is the first problem of today's session, and I got a first response as 5 millisecond from Ashish. And Shubham has also responded as 5 millisecond. 2 response I get. 2 response, one from Ashish and one from Shubham. Let's see what others will respond, or they will respond or not. Okay, let's reset this time. I think this problem, I have to solve this problem because till now only 2 of you have responded. So I'm clearing, and I have already taken some of the crux related with this problem, and these are as follows. Let's read out problem first. Consider a uniprocess system. This is a uniprocess system. Let's see, sir. Sumit Kumar has told me that sir, question is not understandable. Okay, Sumit, I will explain this question in a detailed manner. Let's see whether you will able to understand or not. At any point of time you find it difficulty, then tell me. Okay. So I'm reading the question. Consider a uniprocess system executing 3 tasks. There are 3 tasks, T1, T2, and T3. Okay. And each of which is composed of infinite sequence of job. मतलब ये जो task हैं
इस टास्क के अंदर में वेरियस जॉब्स हैं, J1 है, J2 है, लाइक दिस। इस तरह से इसके पास आपका K1 है, K2 है, लाइक दिस। इन्फिनाइट जॉब्स हैं, इसके पास L1 है, L2 है, लाइक दिस। इन्फिनाइट जॉब्स है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लाइन रहा। विच अराइव्स पीरियोडिकली, पीरियोडिकली अराइवल होता है कब? periodically arrival of these jobs at 3 millisecond, 7 millisecond and 20 millisecond। मतलब अगर J1, अगर T1 का जॉब J1 पहला जॉब अगर हमारा 0th टाइम पे आता है, तो J2 हमारा कब आएगा? 3 मिलीसेकेंड के बाद। इट मींस 3 पे आएगा। देन J3 कब आएगा? 6 पे आएगा। देन 9 पे आएगा। 3 मिलीसेकेंड के इंटरवल पे आएगा। T2 जो टास्क है उसी का आपका K1 आएगा। कब आएगा? मानते हैं अगर 0th पे आएगा तो नेक्स्ट जॉब 7 पे आएगा। नेक्स्ट इसी का जो जॉब है वो 14 पे आएगा। नेक्स्ट 21 पे आएगा। नेक्स्ट 28 पे आएगा। ठीक है, इस तरह से T1 लेते हैं। T1 का L1 अगर 0 पे आएगा तो L2 आपका कितना पे आएगा? 20 पे आएगा। L3 कितना पे आएगा? 40 पे आएगा। L4 60 पे आएगा। L5 आपका 80 पे आएगा, लाइक दिस। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका T1 के लिए पीरियोडिकली अराइवल 3 का है, तो 0, 3, 6, 9, 12, 15। T2 का इस तरह से, T3 का इस तरह से। तो टिल नाउ do you find any kind of problem to understand? Yes, student, kindly respond quickly whether you are able to understand this concept. Okay, so we got the response. No problem. Okay, very good. Now, this is the scenario till now. Next is the priority of each task is inverse of its period. पीरियड कहने का मतलब कि जितने देर तक वो सीपीयू रिक्वायर करेगा उसका इनवर्स होगा आपका प्रायोरिटी। एंड द अवेलेबल टास्क आर शेड्यूल इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। ये तो हमेशा होता है कि प्रायोरिटी जो जितने अवेलेबल होंगे उनमें जिनकी प्रायोरिटी होगी, हाई, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, विथ द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल फर्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाईएस्ट प्रायोरिटी को हम सबसे पहले शेड्यूल कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, और यहाँ क्वेश्चन में आगे ही चल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को कर रहे हैं ईच इंस्टेंस ऑफ T1, T2, T3। हर एक जो भी इंस्टेंस है T1 का, T2 का, T3 का requires an execution time of 1, 2 and 4 milliseconds respectively। ये डेटा भी मैंने यहां पे ले लिया है। Given that all tasks initially arrive at the beginning of 1 millisecond। ठीक है, तो 1 मिलीसेकेंड पे आपका क्या होता है? सारे टास्क अवेलेबल हैं। इट मींस अगर हम रेडी क्यू का स्टेटस देखेंगे, रेडी क्यू का अगर हम स्टेटस देखेंगे एट टाइम 1, तो आपका T1 का आपका कौन सा प्रोसेस? J1। T2 का आपका कौन सा प्रोसेस? K1। एंड T3 का कौन सा प्रोसेस आपका? L1 अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ये भी है, बोलता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकेंड। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकेंड इट मींस दैट फर्स्ट मिलीसेकेंड जब शुरू हो रहा होगा तो उसका बिगिनिंग क्या हो जाएगा? 0th हो जाएगा, 0 मिलीसेकेंड।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो क्या लिखा है, इनिशियली जो अराइव हो रहा है वो फर्स्ट मिली सेकेंड पे अराइवल हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिली सेकेंड। तो फर्स्ट मिली सेकेंड कब से बिगिन होता है, 0 से बिगिन होता है, 0, 0.1, 0.2, 3, 4 लाइक दिस, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या क्वेश्चन है कि फर्स्ट मिली सेकेंड एंड टास्क प्रीम्पशन आर अलाउड। टास्क का आप प्रीम्पशन कर सकते हैं, इट मींस कि ये क्या है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मेन जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, इट मींस हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है किसका, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3। तो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 इट मींस किसका, L1 का। एट अब ये कब कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन टाइम हमको बेसिकली कैलकुलेट करना है L1 का। सारे डेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो 0th टाइम पे हमारे सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, सारे टास्क अवेलेबल हैं, उनके फर्स्ट इंस्टेंस अवेलेबल हैं। तो अब देखिए प्रायोरिटी क्या होगा, प्रायोरिटी के लिए क्या कहा था, इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड होगा, तो इनवर्स 1/1, 1/2, 1/4, दिस विल 1, दिस विल 0.5 and this will 0.25, ओके, दिस इज द वैल्यू। अब बोलता है जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको हम शेड्यूल करेंगे, हाईएस्ट प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0th पे हम किसको देंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 1 की, तो J1 को प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसको कितना टाइम लगता है, 1 मिली सेकेंड का, तो 1 पे जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एट द टाइम 1 पे अगर हम देखें तो क्या होगा, J1 कंप्लीट कर चुका होगा, K1 और L1 अभी भी बना हुआ होगा, और J2 अभी अराइव नहीं किया है, क्योंकि J2 जो है वो अराइव कब करेगा, आपका 3 पे। तो एट टाइम 1 पे हमारे पास सिर्फ K1 रहेगा और L1 रहेगा। तो इनमें किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, K1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो K1 को हमने असाइन कर दिया। अब देखिए K1 को कितनी देर के लिए चाहिए था, 2 मिली सेकेंड के लिए चाहिए था, तो इट मींस 1 से 2, 2 से 3, 2 इतने में कंप्लीट हो जाएगा, तो इट मींस 3 पे जाकर के कंप्लीट हो जाएगा, और 3 पे अब K1 भी बाहर चला जाएगा, और नेक्स्ट इंस्टेंस अब इसका कब आएगा, इट मींस K2 आएगा 7 पे। लेकिन यहां पे देखें तो आपका 3 पे आपका कौन आ चुका था, J2 आ चुका है 3 पे। तो अब देखिए एट टाइम 3 पे रेडी क्यू में J2 एंड L1 है हमारे पास। अब इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, नो डाउट J2 की है। तो हम क्या करेंगे, J2 को सिस्टम असाइन कर देंगे, कितने देर के लिए असाइन करेंगे, इसको रिक्वायर्ड है 1, और इससे कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का आएगा नहीं इसके बाद, तो ये अनइंटरप्टेड 3 से 4 तक रन करेगा। और नेक्स्ट कब आएगा, इट मीन J3 कब आएगा, एट टाइम 6 पे आएगा, और आपका K2 कब आएगा, एट टाइम 7 पे आएगा। तो अब क्या होगा, एट टाइम 4 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L1 है सिस्टम में, तो L1 को हम CPU एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए इसको चाहिए, 4 के लिए चाहिए, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कब आ रहा है, एट टाइम 6 पे आ रहा है, तो यहां पे 6 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन होगा, और एट टाइम 6 पे क्या होगा, हमारे पास J3 भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, J3 भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अब एट टाइम 6 पे क्या करेगा,
L1 को ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा तो इसको सीपीयू से बाहर निकालेगा और इसको रेडी क्यू में डाल देगा। तो ये आ गया L1 फिर से रेडी क्यू में। अब एट टाइम 6 पे हमारे पास L1 है और J3 है। किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है? नो डाउट J3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। अब एक चीज यहाँ ये भी याद रखेंगे, इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच गया, तो यहाँ कितना प्रोसेस किया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है इसका। ठीक है, अब देखिए J3 को हमने सीपीयू एलोकेट किया और J3 को कितने देर के लिए चाहिए, 1 मिली सेकेंड के लिए चाहिए, तो 7 पे ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट आपका J4 क्या होगा, 9 पे आएगा। अब आप 7 पे देखेंगे तो K2 हमारा सिस्टम में आ चुका है एट टाइम 7। तो 7 पे हमने देखा कि हमारे पास क्या होगा, K2 होगा एंड L1 होगा। किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो K2 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो K2 को हम सीपीयू एलोकेट कर देंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे, तो इसको 2 यूनिट रिक्वायर्ड था, 2 यूनिट रिक्वायर्ड था, तो ये क्या करेगा आपका 2 यूनिट, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस जो J4 है वो हमारा 9 पे आ रहा है, तो 7 + 2 करेंगे तो 9 होगा और 9 पे हमारा क्या होगा, J4 आएगा। ठीक है, J4 हमारा क्या होगा, 9 पे आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमारा 9 पे K2 कंप्लीट हो चुका होगा और K3 अब देखेंगे, K3 तो ये होगा 14 पे आ रहा होगा। अब देखिए K2 कंप्लीट हो चुका है, K2 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हमारे पास सिस्टम रेडी क्यू में एट टाइम 9 पे हमारे पास J4 एंड L1 दोनों बने हुए हैं और किसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, J4 को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। कितने देर के लिए एलोकेट किया जाएगा, 1 मिली सेकेंड के लिए एलोकेट किया जाएगा। तो 9 + 1 विल बिकम 10। तो अब देखिए नेक्स्ट J5 कब आएगा, हमारा 12 पे आएगा। K3 कब आएगा, 14 पे आएगा। तो अब हमारे पास सिस्टम में क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एट टाइम 10 पे हमारे पास L1 बचा हुआ है। तो L1 को हम देंगे, सीपीयू एलोकेट करेंगे। चूंकि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कब आ रहा है, एट टाइम 12 पे आ रहा है, तो 10 + 2 12 पे ये 12 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन करेगा और इतना ही इसको रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से एट टाइम 12 पे हमारा फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ J3, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3, सॉरी, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 एट टाइम 12 मिली सेकेंड पे जाकर के कंप्लीट होगा। सभी को समझ में आया? Kindly respond, because this was one of the typical problem till we have solved. सभी को समझ में आया? Yes, sir. तीन रिस्पॉन्स मिले हैं। अभी टोटल 17 स्टूडेंट ज्वाइंट हैं, 4 रिस्पॉन्स मिले हैं। ओके, प्लीज अदर लोग सोइए नहीं, क्योंकि इसी सब किसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको पूछ सकता हूं ये, और इवन ये आपको असाइनमेंट में भी करना है प्रॉब्लम। ठीक है, तो काइंडली असाइनमेंट आपको कॉपी करने की जरूरत ना पड़े, काइंडली ये देखिए। ठीक है, बिकॉज आई नो कि आप लोग बहुत कॉपी करते हैं, सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। आपको अभी क्लास में समझाया जा रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द क्लास। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1.55 asked in GATE 2015, and this is one of the typical problem till we have solved. Okay, I am erasing this. होप आप सभी ने नोट्स ले लिया होगा इसका।
Yes, I will upload this video, Shubham. I will, don't worry about this. I will upload this video on the VCS platform. Okay. Now we have solved question number 1.54 in a previous class. Now we will solve question number, okay, we will solve question number 1.52. And this is asked in GATE 2014 for 2 marks. Oh, actually VCS शुभम, I want to inform all of you, VCS तो आप लोग सबके पास है ना, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आप लोग सब वहां से देख सकते हैं, आई थिंक इजिली. ओके, आप लोग वहां से देख लीजिएगा. यस, यस यस शुभम, you have, and I think all of you have the login ID and password for the VCS platform. Okay, and now we are solving question number 1.52, and I'm again, now for this question I'm reducing the time because we have solved this kind of problem. I'm giving you 3-minute time to solve this problem. 1.52 asked in GATE 2014 for 2 marks question. I have given you 3-minute time to solve this problem. Let me draw the table. Okay. Did we got any response? Okay, Ashish Kumar has responded 7.2. Okay, Ashish has responded as 7.2 as a solution for this problem. Let's see whether he is right or wrong. Okay, this is the problem. 5.5, sir. What 5 point? 5.5. 5.5. Somebody has Millimeter. responded 5.5. Simran has also responded as 7.2. So two of you have responded 7.2. And I think you all have responded way before time. Okay, in 2 minutes you have solved this problem. Very good. Nikhil has also responded as 7.2. Okay, 3 of you have responded the same answer. And 1 of you have responded as 5.5. So let's see, timer is expired or not. Okay, 19 seconds you have. Okay, I don't find any kind of difficulty in this problem, but as number is less who have solved this. Okay, time has expired. Student, do you need me to solve this problem?
Okay, Priyanshu Gumari and Manisha Gumari has also responded as 7.2. So I am presuming that 7.2 is the right answer because most of you have responded as 7.2. Oh, okay, let's try to solve it in a hurry. Okay, I will draw the Gantt chart only, and I'm hoping that you can calculate the value. What is it is asked? Average turnaround time. I will only draw the Gantt chart. So this is the problem. This is the problem, and it is given that a single CPU is there. There is no another CPU. Sumit Kumar has also responded 7.2, and he is saying that it is the right answer. Okay, Sumit, let's see. So this is the situation, and we are using shortest remaining time first. Okay, we have seen this algorithm in so much detail. We have solved so many questions. So I think all of you have solved this. So uh, first process will come at time 0. Ready queue, the status of ready queue. Let's see the status of ready queue at time 0. We have only one process A, and the time it is required is 6. So A will do the processing, and next process will come at the time 3. So 3 तक तो ये uninterrupted रन करेगा. 3 पे क्या होगा, आपका रेडी क्यू में फिर से ये ए चला जाएगा और 3 यूनिट ये वर्क कर चुका होगा, और बी भी हमारे पास आ जाएगा रेडी क्यू में एट टाइम 3. अब 3 पे हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे, ए एंड बी. इनका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग टाइम कहा जाए तो एक का 3 होगा, एक का 2 होगा. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, तो हम क्या करेंगे, विनर विल बी बी. अब कब तक के लिए ये चलेगा, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बी का सबसे कम है और वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा, नो डाउट. तो 2 यूनिट ये रन करेगा, तो 5 तक ये अनइंटरप्टेड जाएगा. 5 पे सिचुएशन देखें तो बी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा, और 5 पे हमारा एक नेक्स्ट प्रोसेस सी आ जाएगा, और इसका जो बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है 4 है. तो ए और सी दो हैं, और इनमें से विनर हमारा कौन होगा, ए. अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है 7 पे, तो 5 से लेके 7 तक तो यह अनइंटरप्टेड रन करेगा. अब देखते हैं एट 7 पे हम क्या करेंगे, ए को फिर से रेडी क्यू में भेज देते हैं. ए को फिर से रेडी क्यू में भेज देते हैं. ए है हमारे पास रेडी क्यू में, और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस सी है. सी 5 पे ही आया है, और डी जो कि 7 पे आया है. ठीक है, और इसका रिमेनिंग टाइम अब कितना हो जाएगा, 1. तो ए सी एंड डी, इसमें क्लियर विनर ए ही है, तो ए को हम कंटिन्यू करेंगे. 7 + 1 विल बिकम 8, और 8 पे एट टाइम 8 ए भी रेडी क्यू से बाहर चला जाएगा एग्जिट स्टेट में. ठीक है, अब देखिए ए एंड बी का काम कंप्लीट हो चुका है, एंड एट टाइम 8 डी एंड सी इज इन द रेडी क्यू, और इसमें से विनर क्या है, सी है. अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कब आ रहा है, 10 पे आ रहा है, तो 8 से लेके 10 तक तो ये अनइंटरप्टेड रन करेगा. एट टाइम 10 हम फिर से सी को क्या करेंगे, रेडी क्यू में डालेंगे. ठीक है, और देखेंगे तो आपका इसका रिमेनिंग टाइम 2 बचेगा, और आपका डी पहले से रेडी क्यू में है, और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ई अब रेडी क्यू में आएगा, और इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो स्टिल द विनर इज सी. और सी कब तक रन करेगा, तो 2 यूनिट और रिक्वायर्ड है इसको, तो 12 तक रन करेगा. नेक्स्ट, तो सी हमारा क्या होगा, एग्जिट स्टेट में चला गया. तो अब डी और ई है हमारे पास, और इसमें से क्लियर विनर कौन है, ई है क्लियर विनर. और कितने देर इसको रिक्वायर्ड है, 3 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो दिस विल डू द प्रोसेस टिल 15. और लास्टली हमारे पास क्या बचता है, डी. तो डी को कितने देर रिक्वायर्ड है, 6 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो दिस इज 21. आप सभी का सॉल्यूशन सेम है स्टूडेंट? यस सर. ओके, वेरी गुड. और आई थिंक अब इस गैंट चार्ट से आप जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वेदर इट इज कंप्लीशन टाइम, वेदर इट इज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम.
और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो AT के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन वेरी इजीली। Now, next question is 1.49. Kindly read this question, and I am allocating. Okay, I am allocating 4-minute time. Let's see that whether you will be able to solve this question. It is question number 1.49, and it is asked in GATE 2012 for the 2 marks. देखिए अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए लगभग 2 मार्क्स के ही किए हैं, और आप सभी देख रहे हैं कि इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो प्रीवियस में बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, आई एम हैप्पी विद दैट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.49 फॉर द ईयर 2012 and for 2 marks. Question number 1.49 asked in GATE 2012 for 2 marks. Let's see. I have allotted you the time. Did we got any kind of response? Ashish has answered C, and it is way before time. Very good. I'm very happy. In 1.5, it means 1.5 minutes he has solved this question. Subham has also responded as C. Okay, 2 response I got and both has same. Simran has also responded as C. Okay, it means Sumit has also responded as C. Okay, it means all of you, those who are responded, they have the same response. It means that there is a high chance of you to done the right. Okay. So यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस गिवन है। Let's see, the timer is still ticking. Very good, student. Here we have arrival time and the who is this Abhishek Jaiswal. Every day I see that he is joining the class. Abhishek Jaiswal, why you are joining classes so much delayed? Yesterday also you have joined this class very late, and today also. Okay, this is the scenario. And we will using 2 CPU scheduling, FCFS, and other is round robin with the time quantum value is 2. Yeah, time slice value is 2. And all of you has responded as an answer C, and it is one of the correct answer. Okay, so very good, student. Right now 19 of you are in the class, and I think four students have given the response. Okay, Ashish, Subham, Simran, Sumit and Manisha, 5 of you have given the answer. 15s are sleeping, or they are not able to solve this problem. It is very easy problem. It is not very typical. Nothing is complex here.
आपको FCFS यूज करना है, राउंड रॉबिन यूज करना है। राउंड रॉबिन में टाइम स्लाइस गिवन है 2 मिलीसेकंड का, ठीक है। ओके, आई होप, आई थिंक यस, टाइम इज आल्सो एक्सपायर्ड now. Now, as because only 5 or 6 students have responded, I think it is better to solve this problem. ऐसे solve करने, Prem Prakash has responded as answer B. Prem, I think you did any kind of mistake in your solution. Let's check it out. I am solving this problem. FCFS में I will only draw the Gantt chart. Okay. Compare your Gantt chart and you will got the solution also with the help of the Gantt chart. FCFS है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा आते जाएगा वैसे हम एलोकेट करते जाएंगे। P1 को एलोकेट करेंगे कितने देर के लिए, 5 इसको रिक्वायर्ड है। देन P2 आया है, P2 को एलोकेट करेंगे कितने देर रिक्वायर्ड है, 7 यूनिट रिक्वायर्ड है। देन लास्टली P3 आया है और P3 को कितने देर रिक्वायर्ड है, 4 यूनिट रिक्वायर्ड है। कितने देर के लिए चलेगा, 16। काम कंप्लीट। ऑर्डरिंग फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज देर इज अ टाइम स्लाइस वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द रेडी क्यू। रेडी क्यू में एट टाइम 0 पे क्या है, P1 अवेलेबल है, कोई कंपटीशन नहीं है P1 के पास, तो P1 ही एलोकेट होगा। इसको रिक्वायर्ड है 5 यूनिट का, लेकिन हम इसको कितने देर टाइम स्लाइस दे सकते हैं, 2 यूनिट दे सकते हैं, तो ये 3 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा, तो 0 से लेके 2 तक ये रन करेगा। अब देखेंगे हम तो एट टाइम 1 पे आपका P2 आ चुका था सिस्टम में, एट टाइम 1 आपका P2 आ चुका है सिस्टम में, एंड एट टाइम P1 भी आपका रेडी क्यू में आ जाएगा। सबसे आगे कौन है, करंट में P2 है, तो P2 को हमने रेडी क्यू से बाहर निकाला, एलोकेट किया। इसको 7 यूनिट रिक्वायर्ड है बट 2 यूनिट ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 5 पे जाकर के 5 इसका रिमेनिंग टाइम बच जाएगा। और अब आप देखेंगे 4 पे, तो 4 पे जब हम देखेंगे तो P3 आपका 3 पे आ चुका था और P2 आपका कितना पे, एट टाइम 4 पे भी आ जाएगा। तो अब चलते चले जाएंगे। अब P1 को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, 3 रिक्वायर्ड था तो 2 हम इसको एलोकेट करेंगे, एक अभी भी रिमेनिंग बच जाएगा, और यहां से अब आपका P1 यहाँ पे चला जाएगा, तो 6 पे जाकर के ये वर्क करेगा। 6 पे फिर हम क्या करेंगे, P3 को सेलेक्ट करेंगे, P3 को प्रोवाइड करेंगे, 2 यूनिट देंगे हम इसको, तो 6 to 8 जाएगा और P3 क्या होगा, फिर बैक में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P2 को सेलेक्ट करेंगे, P2 को प्रोवाइड करेंगे, 2 यूनिट प्रोवाइड करेंगे, तो 8 to 10 ये जाएगा और P2 फिर से पीछे की ओर चला जाएगा क्योंकि अभी भी इसका रिक्वायरमेंट। फिर क्या होगा, P1 सेलेक्ट होगा, इसको कितना देर रिक्वायर्ड है, 1 यूनिट रिक्वायर्ड है, तो 10 to 11 पे जाएगा और P1 क्या होगा, अब सिस्टम से बाहर की ओर चला गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P3 को एलोकेट करेंगे, P3 को 2 यूनिट ही रिक्वायर्ड था, अब ये 2 यूनिट भी इसका खत्म हो गया, तो 11 से 13 पे P3 भी सिस्टम से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P2 को ही सिस्टम एलोकेट करेंगे, 13 से 2 यूनिट एलोकेट करेंगे, बच जाएगा 1 यूनिट, और 13 से 15 की हो जाएगा, और फिर से लास्टली P2 को ही एलोकेट करेंगे, कितने, 1 यूनिट के लिए एलोकेट करेंगे, तो 16 पे। तो ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका P1 कंप्लीट होगा, देन P3 कंप्लीट होगा, देन आपका P2 कंप्लीट होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन इन राउंड रॉबिन। ओके, सो आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, सभी को समझ में आया ये सॉल्यूशन? Okay, Prem Prakash has also responded the correct answer at last. He got that where he did some mistake. I hope सभी को solution समझ में आ गया होगा. It was not a vital or anything not very complex in this problem.
Now moving towards the next problem, we will solve 1.47 and it is asked in GATE 2011. GATE 2011 में पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू द टाइम, टाइमर कर देता हूँ 5 मिनट का, देखते हैं कि कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं विद इन 5 मिनट टाइम पे। मैंने 5 मिनट एलोकेट किया, देखते हैं 5 मिनट में कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। 1.47 asked in GATE 2011 for the 2 marks. It is not very complex, it is very easy. We have seen so many problems on this concept, and I think most of you will respond as a correct answer. Manish Kumar, kindly mute yourself. Manish Kumar, kindly mute yourself. Solve this problem. Okay, we got some response also. Okay, Ashish and Subham has responded as answer as 5. Okay. Simran has also responded answer as a 5. 5, sir. Okay. Sumit has also responded answer as 5. And it means in 3 minutes you have solved this problem. Very good, students. All of you has answered as a 5. And I'm telling you this is the right answer. Do I have to solve this problem? Do I have to solve this problem? Yes, I have to, because only this much amount of students are responding. So for those who have solved it correctly, very good. And those who were not able to solve this problem, let's see that where you was stuck. So this is the scenario, this is the table, and we are using primitive shortest job first scheduling. Primitive, अब ये primitive कर रहा है, it means कि क्या हो गया कि ये हो गया shortest remaining time first. आपका नॉन प्रिमिटिव अगर एसजेएफ होता तो
वो सिंपली एसजेएफ की तरह वर्क करता है, लेकिन जब ये प्रिमिटिव एसजेएफ की बारे में बात कर रहा है तो दैट विल बिकम SRTF. Let's see the situation. At time 0 we had only one process P0. Next process comes at 1, तो 1 तक ये अनइंटरप्टेड रन करेगा. अब देखिए 1 पे who is this? 1 पे क्या होगा कि आपका P0 8 टाइम यूनिट और रिक्वायर्ड होगा उसको, और तो 1 पे हमारा रेडी क्यू का क्या पोजीशन होगा, तो रेडी क्यू एट टाइम 1 पे हमारे पास P0 और P1 दोनों अवेलेबल होंगे, और इनमें से रिमेनिंग टाइम किसका कम है, तो कम है आपका P1 का. और P1 को अगर हम ध्यान से देखेंगे टेबल को तो हमें पता चलेगा कि P1 से कम किसी और का होगा ही नहीं. तो P1 क्या करेगा, 1 से लेके पूरा कंज्यूम करेगा 4 यूनिट. तो एट टाइम 5 पे फिर हम सिचुएशन देखेंगे तो क्या होगा, P1 आपका एग्जिट हो जाएगा सिस्टम से. अब क्या होगा, 2 पे आपका P2 आ चुका है तो 5 पे भी P2 रहेगा. और यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 हैं, और इनमें से सबसे कम जो रिमेनिंग टाइम है वो किसका है, आपका P0 का है. P0 क्या होगा, फिर चूंकि अब ये कम है तो जितना कम होते जाएगा वो क्लियर विनर ही रहेगा हमेशा. तो वी डज नॉट हैव टू कॉन्टेक्ट स्विच आल्सो. तो 5 से लेकर के आपका 8 यूनिट ये पूरा कंज्यूम करेगा तो 13 तक ये रन करेगा. अब एट टाइम 13 P0 भी आपका सिस्टम से बाहर चला जाएगा, सिर्फ हमारे पास P2 बचेगा. तो P2 को सीपीयू एलोकेट कर देंगे, 9 यूनिट एलोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 तक ये कंप्लीट हो जाएगा. Now the question which is asked is to calculate the average waiting time. I have drawn the Gantt chart and I think you can calculate the completion time by looking at the Gantt chart. You can calculate the turnaround time by CT minus AT, and you can calculate the waiting time by turnaround time minus burst time. And you can calculate the average also by summation of I is equal to 0 to 2 waiting time of I, okay, divided by 3. By help of this you can calculate average waiting time. Okay, so it is it was I don't think it is very typical question. It was not a typical question. And now I'm providing you link for today's attendance. Please give your response. Okay, student, I have provided you link for today's attendance. Kindly respond on that link. And till now we have solved question number 1.47. Okay, now I have one question for all of you who are giving response also, or who have given the response. Do we need to solve more question from GATE, or did you got the confidence that you will solve remaining question by yourself? Yes, student, kindly respond, because it depends that tomorrow what we will study. Do we have to solve more question from GATE, or will you able to solve remaining problems? Why none We of you? solve question, sir. Yes. We are able to solve any question, sir. But you should give us assignment as a Okay. GATE question. Oh, Sumit has also responded solve itself. Okay.
Okay, so two response I have got in favor of that. They You are, can now proceed with the concepts now. yes, yes. You can proceed to the concept more further. Okay, okay, okay. It means three of you are confident that you will be able to solve this problem. Okay. Uh, Sir, provide us more questions in WhatsApp group. okay, I will provide you the remaining question in the WhatsApp group, Yes. and you will try to solve these problems. If you will find any kind of difficulty, then you will inform me via the Google Classroom or via the WhatsApp group. I will prefer the Google Classroom. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So I think all of you will be able to solve any kind of question asked with related with this topic. So from tomorrow onwards, we will jump into the new concept, process. We will dig deep into the process and all the related concept with the process control block. We will study about some of other concept related with threads. Okay. So tomorrow onwards, we'll start a new topic. Uh, Hope none of you have any kind of problem related with the current module which we have finished. Sir, what is the topic for tomorrow? Tomorrow topic Process. will be PCB, process and thread. Okay, sir. Okay. So thank you, student. Have a nice day. We will meet tomorrow.